गुड इवनिंग टू ऑल। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। मेरी राय में इसका एक प्रमुख कारण उसमें विद्यमान जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहलता के गुण हैं। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे और अधिक जानने की उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। मनुष्य पैदा तो धरती पर हुआ, इसकी जिज्ञासा के दायरे में समुद्र और आकाश दोनों आ गए। आकाश के रहस्य जानने के लिए कभी इसने पंख बांध कर उड़ने की कोशिश की तो कभी गर्म गुब्बारों की सहायता से उड़ान भरी। हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, एयरबसों, रॉकेट आदि की मदद से इस संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक छान मारा। सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य की जिज्ञासा शांत हो जानी चाहिए थी, किंतु मनुष्य की छलांग में अब अंतरिक्ष और ब्रह्मांड भी शामिल हो गए। अब हम चंद्रमा और मंगल तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। ये सभी प्रयास अति जटिल ज्ञान तथा उच्च तकनीक पर आधारित हैं। आम आदमी की समझ में मुश्किल से समझ में आते हैं, जबकि जानने की इच्छा उन्हें भी होती है। आजकल हमारा चंद्रयान 2 मिशन चल रहा है। 7 सितंबर को इसके धरती पर सहजता से उतरने की आशा है। हमारा चंद्रयान 1 धरती पर उतर चुका है, किंतु टकराकर। यदि हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाते हैं तो ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वालों की सूची में, विश्व की सूची में अमेरिका, रूस, चीन के बाद हमारा स्थान चौथा हो जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे कलम में डॉक्टर अनिल जैन विद्यमान हैं। आप अत्यंत योग्य, अनुभवी तथा कुशल वैज्ञानिक हैं। आपको इसरो के साथ काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसके अलावा आपको जटिलतम विषयों को सरलतम भाषा में समझाने की विशेष योग्यता है। आज से पहले भी जब आपने ऐसी कोशिश की तो बहुत सराही गई। मुझे पूरा विश्वास है इस दफ़ा भी कि वार्ता में भी आप श्रोताओं का पूरा आनंद आएगा। Now I invite Meenakshi ji to introduce today's learned speaker, our own Rotarian, Dr. Anil Jain ji. Thank you. The mediocre teacher tells. The mediocre teacher tells, good teacher explains. Superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. Dear ladies and gentlemen, it's a privilege for me to introduce to you all a leading light who recently was over the news for his contribution in ISRO's second lunar mission, Chandrayaan 2. And hence he brought laurels to Ambala. It would be a moment of pride today for all of us, Ambala people, to witness the interesting talk being presented by this dynamic personality himself. He holds a PhD in instrumentation from the prestigious Birla Institute of Technology and Science, Pilani. He has been the president of Vaisheshik Electron Devices Ambala Cant since 1976 with 40 years of leadership experience in education, business and instrumentation. Not only this, he has the distinction to be the visiting professor at BITS Pilani for 25 years and Maharshi Markandeshwar University since 2013. Recipient of 15 national awards, he has deeply studied various projects of United Nations Development Programme and United Nations Industrial Development Organization for education, entrepreneur and small and micro industrial units in developing countries.
an orator who mesmerizes his audience with his unique style. He has been the national trainer for Junior Chamber International since 1991. With profound interest in reading and writing, lots of his publications add to his list of achievements. Leader in true sense, he has been the past president of Rotary Club of Ambala, past state president, then Indian JCs, past president of SEMA, and advisory member of Project Monitoring Committee in a joint project of SIDBI and IDDC. He is a firm believer of the philosophy of living a transparent life. And he is definitely an inspiration for youths and adults in all ways. So all set to take you all to this interesting journey to the moon with his colorful presentation, please join hands to welcome the leader, the powerhouse, the living legend himself, Mr. Anil Jain. We welcome you, sir. Over to you for the presentation, sir. Good evening, ladies and gentlemen, Rotarians, inner wheelers, prestigious citizens, industrialists, entrepreneurs, and above all, the young infant children, the future of India of tomorrow. They are the persons who shall be on the moon when we may or may not be on the earth. दोस्तों, धरती से चंद्रमा तक की दूरी कई लाख किलोमीटर है, पर मेरा आपको आश्वासन है कि हम ये यात्रा ठीक 45 मिनट में पूरी करेंगे। धरती से चंद्रमा की आपकी यू स्टार्ट नाउ एंड द फ्लाइट टेक्स ऑफ टू मून एंड यू आर अबोर्ड Chandrayaan 2. Welcome, ladies and gentlemen, on board Chandrayaan 2 of Indian Space Research Organization. This presentation is dedicated to the spirit of excellence of Indian space research scientists, whose untiring efforts of the last 50 years have brought this moment to the culmination. The space research in India has been possible because there has been some visionaries. Someone could think almost 50 years back that India should be in the space, when it was probably a very, very mundane and German economy. We have the problem of food, shelter, illiteracy, and what not. I am very much pleased poignantly to share with you that this journey to space program, यानी चंद्रयान की जो ये यात्रा आज से 50 वर्ष पहले शुरू हुई, यह त्रिवेंद्रम के पास एक छोटा सा गांव थुम्बा, और थुम्बा में सेंट मेरीज मैगडलिन चर्च, वहां पर चर्च क्रिश्चियंस ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए अपने चर्च की पूरी प्रेमिसेस विक्रम साराभाई के कहने पर डोनेट कर दी. यू लुक एट द कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर and you look to the commitment to the cause of a person. He may be a Muslim, he may be a Christian, he may be a Hindu, he may be a Muslim. A Christian community donated St. Mary's Magdalene Church, which became the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, and this was established with the joint consultation of two visionaries, Dr. Homi Bhabha, who is the father of Indian nuclear program, and Dr. Vikram Sarabhai,
who is the visionary and architect of Indian space program. They are our iconic space pioneers. Dr. Homi Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai. And they were very quickly followed by two equally distinguished scientists, Dr. Brahm Prakash and Dr. Satish Dhawan, who gave the momentum, who gave the direction, and who materialized the vision of Dr. Vikram Sarabhai. यह कहना बहुत ही उपयुक्त होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब उस समय, उस अवस्था में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कहने पर एज ए प्रोग्राम मैनेजर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन त्रिवेंद्रम में आए और वहाँ पर, जो कि बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, उनका भी इस प्रोजेक्ट में, इस मिशन में बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा। जरा थोड़ा सा 50 साल पहले के गलियारों में चलिए तो आप देखेंगे, ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये है अब्दुल कलाम साहब, जो कि स्पेस लेबोरेटरी में आपस में चर्चा कर रहे हैं. You look at the simplicity of the scientists who later became the national legends. Here is Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister of India at that time. And again, this is Dr. Abdul Kalam and Dr. Satish Dhawan. Mrs. Indira Gandhi वह प्रधानमंत्री थी जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष मिशन को मोमेंटम दिया, अप्रूवल दिया. और आप मानेंगे, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मिशन पॉलिटिकल विल के बिना ना शुरू हो सकता है ना पूरा हो सकता है. द political will and the locomotive engine to this space program was provided by Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India. ये था शुरुआत. आप देखिए, पहला रॉकेट जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया, उसको इस तरह से साइकिल के कैरियर पे रखा गया. आप विश्वास करेंगे, ना कोई स्कूटर, ना रिक्शा, ना कोई किसी प्रकार की ट्रॉली, ना ट्रैक्टर. इट वॉज एन अनमोटरेबल रोड. कुछ भी तो नहीं चल सकता. ये पहला रॉकेट है जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ले जाया गया और वहां से इसको फायर किया गया. और ये देखिए, सन 1981 में जब हमारा पहला एप्पल सैटेलाइट इसी थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन पर ले जाया गया, वो बैलगाड़ी में ले जाया गया. आप जरा अनुमान तो लगाइए कि आज आप विश्व की चौथी वह राष्ट्र हैं जिसने कि चांद पर अपने सैटेलाइट उतारने की कोशिश की और चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित कर दिया. पर जरा शुरुआत तो देखिए कहां से हुई. अमेरिका ने पता नहीं कहां से शुरू किया होगा, फ्रांस ने कहां से शुरू किया होगा. अमीर देश थे, एक गरीब देश ने, जहां आज भी शायद 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उस देश में पहला सैटेलाइट इस बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया. ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप इतिहास के और पिछले 50 साल के गलियारों से गुजरें तो आपको पता चले कि किस तरह से हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कितने दुर्भक्ष अवस्था में और कितने दुर्भिक्ष परिस्थितियों में भारत के अंतरिक्ष मिशन को कामयाब करने के लिए या उसके लिए सोचा. आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2. It is the first big leap of the Indian space program, which is our engineering exploration for the future to explore the moon.
दोस्तों, चंद्रयान 2 के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का नेतृत्व डॉक्टर कैलासा वादिवो शिवम, जो कि मेला सराकाली विटाई नागेरकाल एक गांव है कन्याकुमारी के पास, वहां उनका जन्म हुआ। एक किसान के घर में पैदा हुए। आप जरा विरोधाभास देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक धनाढ्य परिवार से थे, साराभाई परिवार से। विरोधाभास देखिए, उनको उस बात का पैशन था, चाहते तो बिजनेस के अंदर जाते और बिलियनियर बनते, नहीं। मात्र 27 साल की उम्र में जिस समय कैम्ब्रिज से पढ़कर आए तो कहा कि मैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में इस्टेब्लिश करूंगा। उसके लिए जमीन साराभाई ने दी। और आज इसरो चेयरमैन के सिवन ये एक किसान के लड़के हैं, किसी धनाढ्य परिवार में पैदा नहीं हुए। पर हाँ, इन्होंने अपना मास्टर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से किया और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का डिग्री इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से लिया। जब ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम के डायरेक्टर थे, मेरा इनसे मिलना हुआ और इनको जब मैंने बताया कि मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से पीएचडी किया, तो इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे आप वैशेषिक छोड़ाओ, आप वीएसएससी त्रिवेंद्रम में आ जाओ। मैंने कहा जनाब, आपके यहाँ तो 65 साल की उम्र में किसी कीमत पर आदमी रह ही नहीं सकता, सुपर एनिमेशन पर भी नहीं रह सकता। क्या हंसने लगे, मजाक की बात थी। जिस समय ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, बताने के काबिल बात है कि फरवरी 2017 में इनके नेतृत्व में एक पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसमें कि एक बार में 104 सैटेलाइट्स, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन्होंने फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया कि पहले व्हीकल को लॉन्च करेंगे, वो समुद्र में गिर जाएगा, उसको फिर इस्तेमाल करेंगे। आज ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। और ये है चंद्रयान 2 लॉन्च की तैयारी। बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि ये चंद्रयान 2 जा रहा है, भेजा गया, कहते हैं 978 करोड़ रुपया खर्च हो गया। श्रीमती अरुणा जैन ने पूछा इसका लाभ क्या है। मैं तो उनको बता नहीं पाया कि लाभ क्या है। मैंने उनको बताया कि ये मून की स्पेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने उनको कहा कि ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए काम आएगा। कुछ बातचीत तो हवा में उड़ गई कि आपने तो 983 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, हाथ में तो अभी तक कुछ चीज नहीं लग रही आई है। ग्लोबल अलायंसेस होंगे, यानी विश्व स्तरीय हमारी मित्रता होगी, मैत्री बनेगी लोगों से। हम वहां के मिनरल्स, हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे। किसी भी आम आदमी के लिए सारी की सारी बातचीत बहुत ही अजीज है, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस लिए भेज दिया चंद्रयान। चलो भाई, हम तो चांद की सरफेस स्टडी करेंगे, वो तो हमने देख रखी है, करवा चौथ पर देखते हैं। पर जब वो पहली बार कल उसकी तस्वीर सैटेलाइट ने भेजी तो वो तो ऐसे जैसे चेचक हुआ है। अभी तो 2500 किलोमीटर की दूरी से है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किए जाएंगे, ये इसका चंद्रयान 2 का उद्देश्य है। चंद्रयान 2 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये बड़ा पावरफुल रॉकेट है, बड़ा पावरफुल रॉकेट है। एंड इनफैक्ट इसरो ने इसको बाहुबली का नाम दिया है। और जियोसिंक्रोनस इसको इसलिए कहते हैं कि जितनी देर में धरती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये सैटेलाइट भी, ये व्हीकल भी 24 घंटे में सिंक्रोनाइज करेगा अपनी मूवमेंट को अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स होंगी, कोशिश की गई है कि ये आपको साधारण भाषा में समझ में आए।
इसके अंदर 640 मेट्रिक टन का प्रोपेलेंट है। आप सोच सकते हैं, आप जब दीपावली पे अपनी फुलझड़ी चलाते हैं या हवाई उड़ाते हैं, उसमें 5 ग्राम का भी विस्फोटक नहीं होता। इसमें 640 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। 640 मेट्रिक टन ऑफ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट का मतलब जो कि इसको, इस रॉकेट की मदद से सैटेलाइट्स चांद तक पहुंचेंगे। इसका पीक थ्रस्ट क्या है? 515 टन। पीक थ्रस्ट 515 टन का होगा जब इसने मून के ऑर्बिट के अंदर दाखिल होना है। बहुत दम लगाना पड़ता है। ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, इसमें जो हमने इक्विपमेंट वहां पर दिया वो 450 टन तक की कैपेसिटी की थ्रस्ट को कैलिब्रेट करने के लिए है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस चंद्रयान मिशन में क्रायोजेनिक इंजन का बड़ा भारी योगदान है। क्रायोजेनिक का मतलब जो तापमान 0 डिग्री से नीचे सब जीरो कंडीशंस में है, सब जीरो स्केल पर है। सबसे कठिन काम 30 साल लगे हैं क्रायोजेनिक इंजन को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बनाने के लिए। इसका बहुत कोशिश हुई, फैसिलिटी एस्टेब्लिश की उन्होंने। लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर महेंद्रगिरी में अपनी ये फैसिलिटी एस्टेब्लिश की, जहां पर कि उन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट्स प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी बनाई। और वहां उन्होंने गॉडरेज, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTR हैदराबाद, HAL बेंगलोर और MTR हैदराबाद, इनके पास रॉकेट, इनके पास इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी। इनको इसका अनुभव था, तो उनके उस अनुभव को तो उन्होंने लिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से और MTAR से, और गॉडरेज और लार्सन एंड टूब्रो से उन्होंने मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद ली अपने ही देश की ऑर्गेनाइजेशन से। जो क्रायोजेनिक इंजन है ये 3rd स्टेज में यूज इस्तेमाल होता है। 3rd स्टेज कौन सी है? जब आपने देखा होगा कि जिस समय भी रॉकेट लॉन्च होता है तो शुरू के 2-3 मिनट के अंदर इसके साइड में 2 स्ट्रैप्स होते हैं जिनको कहते हैं बूस्टर स्ट्रैप्स। वो चीथड़े उड़ जाते हैं। उनका काम ये है, उन्होंने इतना थ्रस्ट पैदा करना है कि रॉकेट स्पेस में चला जाए। This cryogenic engine comes into force when this rocket goes beyond the gravitational, जो अर्थ का, धरती का गुरुत्वाकर्षण है, उससे बाहर चला जाए, तब ये क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री मैंने कोशिश करी है डिस्क्राइब करने की, बड़ा ज़रूरी है, साधारण सी है, और अगर आप समझेंगे तो समझ आ जाएगी। पर अगर ये समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम किया। केमिस्ट्री क्या है क्रायोजेनिक इंजन की? कि रॉकेट इंजन को हाई मास फ्लो चाहिए, जो कि जिसमें दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजर होने चाहिए, और वो जो फ्यूल है वो थ्रस्ट जनरेट करे। जरा समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, ये दोनों मिलकर they would constitute the fuel to propel the rocket. अब जैसे मैंने आपको कहा, ऑक्सीजन सबसे साधारण एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजर, और गैस फेज में ये आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मिलता है। कोई इसमें नई बात तो मैं आपको बता नहीं रहा। हाइड्रोजन भी इसी तरह से बड़ा साधारण सा फ्यूल है। जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट्स को अपने स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक चाहिए, इनको स्टोर करने के लिए छोटे छोटे टैंक चाहिए। और दूसरी बात ये, जब कभी भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में आप इनको कूल कर दें सफिशिएंटली, और ये जब लिक्विड फेज में होते हैं, यानी तरल अवस्था में होते हैं, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर लोअर, और इनकी टैंकेज सिंप्लीफाई हो जाती है। यानी इनको जो स्टोरेज करने की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा सामान्य हो जाती है। सिंप्लीफाई मीन्स सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स क्या हैं जिनके ऊपर ये लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्टोर किए जाते हैं? -183 डिग्री। बर्फ 0 पे होती है बेटा, ये -183।
-183 डिग्री सेल्सियस। घर जाकर कैलकुलेट करना, केल्विन स्केल -273 होती है, और हाइड्रोजन है -253, लगभग केल्विन स्केल के नजदीक नजदीक। ये इनके क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टेजेस है जिसमें लिक्विड फेज में ये रखे जाते हैं। और क्रायोजेनिक इंजन जिसने चंद्रयान 2 को कक्षा में छोड़ा, उसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक को कहते हैं LH2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन 2, एक को कहा LOX लिक्विड ऑक्सीजन। और इन दोनों ही बहुत ही सस्ते और बहुत जल्दी, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कमाल की है। अब ये तो आप समझे कि जो काम 40 साल में हुआ, आपके साथ वो 40 मिनट के अंदर शेयर करना है। कालिया ज्यादती तो बहुत है, पर हाँ ऐसा सा जरूर है कि कोशिश ये की जाए कि कल जब आपका मन करे तो उस समय आप अध्ययन अपने एंड पर कर सकते हो, आप बच्चे पढ़ सकते हो अपनी किताब में, इंटरनेट पे जाके देखें, पर आपको 40 मिनट में इस बात का प्रोत्साहन मिल जाएगा कि हाँ भाई काम तो वाकई बहुत गजब का हुआ। अब इस चंद्रयान में कुछ पेलोड्स हैं। पेलोड का मतलब यह हुआ करता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यंत्र हैं, इसीलिए तो वो लॉन्च किया गया। ऐसे थोड़ी तरह की जैसे हम लोग दीपावली पे हवाई चला देते हैं। पहला पेलोड है ऑर्बिटर, जिस समय की ये पूरा का पूरा चंद्रयान घूम रहा है धरती की कक्षा के इर्द गिर्द या चांद की कक्षा के इर्द गिर्द, उसे कहते हैं ऑर्बिटर पेलोड। पेलोड का मतलब ये उस अटैची केस में, उस बक्से में ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है ना? अब क्या क्या इसके अंदर, पिटारे में क्या क्या है, उसके अंदर टेरेन मैपिंग कैमरा, क्योंकि कैसी सी जमीन है, धरती कैसी है, चांद कैसा है, 3 डायमेंशनल। उसमें लार्ज सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए हैं, जो कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, फेरस और सोडियम, इनको वहाँ पर इन ट्रेसेस को इनको एग्जामिन करेंगे। और हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जैसे आपके अब आजकल मोबाइल टेलीफोन पे कहते हैं ना हाई रेजोल्यूशन में बड़ी हाई डेंसिटी की पिक्चर्स हम खींच सकते हैं, मेगापिक्सल्स। यहाँ पर बड़ी लाजवाब चीज़ है, हाई डेंसिटी रेजोल्यूशन कैमराज है। इसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के एक्सप्लोरर भी लगे हुए हैं कि अगर तो धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है तो कैसा वातावरण, अगर चंद्रमा की जाए तो वहाँ का कैसा वातावरण। सोलर एक्सरे मॉनिटर लगे हुए हैं, क्योंकि जो सूर्य है उससे कोरोना और एक्सरेज का वहाँ से एमिशन होता है, उसको भी रिकॉर्ड करना है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए हैं जो ग्लोबल मिनरलॉजिकल और वोलेटाइल मैपिंग करेंगे मून का। ग्लोबल मिनरलॉजिकल का मतलब ये कि धरती पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिनरल्स हैं और चांद की धरती पे क्या क्या मिनरल्स हैं। समझ में आ रहा है ना? और वोलेटाइल मैपिंग करेंगे कि भाई कोई वॉल्केनो तो नहीं है वहाँ पे जो फटने के करीब हो या फट रही हो, ऐसी सी वहाँ पे परिस्थिति तो नहीं है। उसके बाद दूसरा है विक्रम लैंडर। विक्रम जो है, इसका नाम विक्रम लैंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको अपनी ट्रिब्यूट देते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम रखा विक्रम लैंडर। ये दूसरा पेलोड है। इसका क्या काम है? ये लैंड करेगा चांद की धरती पर, लैंड करेगा। जब ये लैंड करेगा, लैंड करने से पहले लैंडर का मतलब ये लैंड कराने में मदद करेगा। विक्रम लैंडर पेलोड यानी विक्रम जिस उतारने के लिए जो हमारी कार है उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। लूनर आयनोस्फीयर एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी पूरी की पूरी उसके अंदर लेबोरेटरी है, जो कि चांद की, धरती की, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के आयनोस्फीयर को देखिए। थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ये लैंडर साहब। कंटिन्यूअस इन डेप्थ टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ द सरफेस, यानी जो आप देखिए लैंडर करेगा क्या कि चाहे लैंड कर रहा है चाहे लैंड कर गया, घुस के अलग अलग डेप्थ में देखेगा कि चांद की धरती पर टेम्परेचर क्या है अलग अलग डेप्थ के ऊपर।
ये मेजरमेंट करेगा सीस्मिक एक्टिविटी का कि भाई भूचाल तो नहीं आते यहाँ पर, हम तो यहाँ भूचाल कहते हैं, वहाँ तो चंद्रचाल कहोगे कि आर देयर ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटीज, इनका क्या उपयोगिता है, इनका क्या रेलेवेंस है, इनकी क्या वैलिडिटी है, वो तो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो उन्होंने मेजर करना है। और ये जो इसके अंदर हाई सेंसिटिविटी सीस्मोमीटर लगे हुए हैं, ये जरा सी भी चांद की धरती पर हलचल हुई, जरा सी मतलब आप तो उसको पहचान ही नहीं सकते अगर खड़े भी हो चांद के ऊपर, ये उसको भी पकड़ लेगा। इसीलिए कहा ल्यूनर क्वेक्स, अर्थक्वेक तो धरती पे होते हैं। तो विक्रम लैंडर में ये लगा हुआ विक्रम लैंडर पेलोड। अब जनाब, अब जब विक्रम लैंडर चांद की धरती पर उतर गया तो आया प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब हुआ करता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्रज्ञान। अभी 7 सितंबर को विक्रम ने चांद की धरती पर उतरना है। अब अगर तो उतरा हम, फिर तो सब तहस नहस हो जाएगा। सांस अटकी हुई है अभी सारे के सारे इसरो के साइंटिस्ट की। दोबारा सुनो, अगर उतरा हम तो समझो सारे के सारे अंदर जो उसके पेलोड्स के इंस्ट्रूमेंट सब टूट टाट जाएंगे, सब खत्म, फिनिश। यू लुक एट द चैलेंज। दिस चंद्रयान इज ए शोकेस ऑफ द Indian science and technology to the global community. You look at the aim. You look at the aim. We are the 4th nation who has attempted this attempt in the space exploration. इस दुनिया में कभी भी कमजोर आदमी की इज्जत नहीं होती। आज अगर ट्रंप साहब भी झुककर बात करते हैं तो उन्हें पता है कि उनके सामने बब्बर शेर खड़ा है, वो बूढ़ा शेर है। अगर फ्रांस के मैक्रोन से मिल रहे हैं, वो ऐसे मिलता है मोदी साहब से जैसे कि उनके सामने बब्बर शेर और वो खरगोश है। ये वीडियो ट्रंप साहब को दिखाइए। Please make it viral. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज who have and who wield power. आज आप वो काम कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और आप देखिए 15 जुलाई को चंद्रयान ने जाना था, जिस समय लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरी जा रही थी अलग अलग चैम्बर्स में। भारतीय वैज्ञानिकों ने देख लिया कि भाई जैसे जैसे भर रहे हैं उधर से वो प्रेशर तो लीक कर रहा है, आपकी तो सांस ही नहीं रुकी, उनकी तो हार्ट बीट बंद हो गई। तुरंत उन्होंने ये 56 मिनट पहले ये घोषणा करी, अबंडन द प्रोग्राम, रीशेड्यूल द लॉन्च। आपको पता ही नहीं है कि 15 जुलाई को अगर हमारा चंद्रयान लॉन्च हो जाता, उसने 2 मिनट के अंदर अंदर 978 करोड़ रुपए के चंद्रयान ने फट जाना था। अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मोतीचूर के लड्डू खिलाने थे, ये हमें पता था। ये साले हिंदुस्तान में चंद्रयान उड़ाएंगे। हैट्स ऑफ टू द इंडियन साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि 15 जुलाई को उन्होंने कहा चलो जब 15 अगस्त 2020 के अंदर उड़ाएंगे, उन्होंने कहा 7 डेज के बाद को रीशेड्यूल किया। अब देखो तो सही यार कि कितनी जबरदस्त हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अपनी एक्सीलेंस, प्रूडेंस और साइंटिफिक स्कॉलरशिप दिखाई। क्या करेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी? हमारे यहाँ के यंग साइंटिस्ट कहते हैं मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाऊंगा। इंडिया इज अ शिट पॉट, बट दिस इज द शिट पॉट वेयर लोटस विल ब्लॉसम। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम्हारे पास 5 एकड़ के अंदर मेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, किसने देखा? हिंदुस्तान के अंदर तुम अब्दुल कलाम हैं, हिंदुस्तान में तुम सिवन है, 125 करोड़ लोग जानते हैं। किसी अमेरिकन से पूछ के बताओ कि नासा का डायरेक्टर कौन है, बता नहीं सकते, लल्लू पंजू हैं।
तुम्हारे देश में तुम्हारी आइडेंटिटी है। I salute to your courage. प्रज्ञान रोवर अब जनाब हम ये मान कर चल रहे हैं बहुत आराम से शांति से ये उतरेगा, जो अपना विक्रम लैंडर है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इस समय बेंगलोर में काम कर रहा है पूरे के पूरे चंद्रयान को मॉनिटर करने के लिए। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN वो धरती से कर रहा है पूरे के पूरे चंद्रयान को कंट्रोल। मैं आपको बताना चाहता हूं 100% इट विल बी ए सॉफ्ट लैंडिंग। जिस समय ईश्वर ने चाहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे साथ हैं और सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को एरिथमिया होगा। जरूर होगा। विक्रम लैंडर के रैंक प्रज्ञान रोवर से अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले काम करना चालू करेंगे। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये रोवर का मतलब एक 4 पहियों वाली 6 पहियों वाली गाड़ी इसके ऊपर सवार है। ये देख रहे हैं आप, ये है सोलर पैनल जो कि सोलर एनर्जी से चार्ज रहेगा और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को काम कराएगा। तो एक तो उसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि मून की एलिमेंटल सरफेस को एग्जामिन करेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल है। एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो ये देखेंगे रॉक फॉर्मेशन से कि क्या यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टिटेनियम, फेरस, जर्कोनियम और स्ट्रोंशियम। ये जर्कोनियम और स्ट्रोंशियम तो बहुत ही प्रेशियस मेटल्स हैं। इनकी ट्रेसेस को या इनके एलिमेंट्स की एग्जामिनेशन करेगा एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। फिर वहां पर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होगी, यानी ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप लगाई हुई है जो ये फोर्स ही करेगी भाई कोई चीज का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा, और फटाफट नीचे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में सूचना भेजेगी, वो वहीं से करेक्शन करेंगे। To identify and determine the abundance of element near the landing site by the use of high power laser pulses at various location. Laser pulses का मतलब ये एक लेजर पल्स यूं छोड़ा, एक लेजर पल्स यूं छोड़ा, एक लेजर पल्स यूं छोड़ा, और इस तरह से लेजर पल्सेस को छोड़कर वो ये चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स की अबंडेंस है। अब आप अंदाजा लगाओ कितना कॉम्प्लेक्स काम होगा। हम तो 40 मिनट के अंदर सारी की सारी रामलीला पूरी कर देंगे। ये मशीन है जो कि हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में लगाई। इस मशीन का निर्माण मोरहाउस इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी पेंसिल्वेनिया यॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। बस उसके बाद इस मशीन का इंस्टॉलेशन कमीशनिंग 450 टन, आप जरा मशीन के वजन का अंदाजा लगाइए, 450 गुना 1000, 4,50,000 किलोग्राम की मशीन। ये मशीन लकड़ी के क्रेट में आ गई। एंड नाउ वेसेस्का कम्स इनटू पिक्चर। देयर इज नो अमेरिकन, नोबडी फ्रॉम मोरहाउस हु वाज नियर दिस इक्विपमेंट। हमारे अंबाला कैंट के वैशेषिक इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस के इंजीनियर्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स के 50 आदमियों की टीम ने इस मशीन को, जिसका वजन 450 टन है, इसको आकाश के अंदर 15 मीटर उठाया। 15 मीटर उठाकर क्रेन से फिर उसको इस तरह से उठाकर जो उनका हॉल था उसके अंदर यूं आराम से रखा। अलाइनमेंट इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस मशीन के अंदर, जो कि सारा का सारा इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और फिर इसका जो पूरा सॉफ्टवेयर था जो कि लोड सेल्स की कैलिब्रेशंस में इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से ये मेजर किया जाता है कि कितने थ्रस्ट, क्योंकि जब भी कभी देखिए मोटर बनी उसके थ्रस्ट का प्रोटोटाइप तैयार होता है। ऐसा नहीं कि चंद्रयान में जाकर उसको फिट कर दिया, पहले इसका एक प्रोटोटाइप बनाया,
फिर उसको एक स्टैटिक टेस्ट बेड लैब में ले गए जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, फिर वहाँ पर उसको फायर किया, फिर ये देखा कि भी क्या इससे 450 टन की थ्रस्ट जनरेट हो रही है। उसमें लगे हुए हैं कोई लोड सेल्स, वो लोड सेल्स ये देखते हैं कि क्या 450 टन हुई या नहीं हुई, फिर दोबारा से वो लोड सेल लाकर फिर से मशीन में लगाते हैं, फिर इनसे कैलिब्रेट करते हैं इसकी मदद से। ये सारी की सारी आप देखें इतनी भारी मशीन थी जिसको कि हमने इंस्टॉलेशन कमीशनिंग किया, और ये हमारी टीम वहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर में पूरा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग फिट हुआ, और इस मशीन का अनसर्टेनिटी 0.0125%, यानी 450 टन के ऊपर। आप जरा कैलकुलेट करके देखिए कि जो उसकी एक्यूरेसी है, मैं तो इस समय कैलकुलेशन करने में असमर्थ नहीं हूँ, समय नहीं है। 450 टन पर 0.0125% की एक्यूरेसी 10th डेसिमल प्लेस के अंदर हम लोगों ने इस पर मेजर लॉन्च किए जाते हैं। इस सक्सेसफुल कमीशनिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने हमको प्रशंसा पत्र लिखा, और जिसमें उन्होंने लिखा कि वी आर अवेयर ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ वैशेषिका in the field of designing and commissioning of calibration standards that are required for many critical facilities in our country, including few ISRO centers. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। मेरी यादाश्त में सबसे पहले चांद पर 1969 में अपोलो 11 मिशन गया था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की धरती पर उतरे थे। वो उनका मैंड मिशन था। हमारा तो अभी भी अनमैन्ड मिशन है। सन 2021 या 22 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि वो मनुष्य को चांद की धरती पर उतारे। किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न चंद्रयान को लेकर या इंडियन स्पेस रिसर्च मिशन को लेकर हो तो जो इसमें यूनिट यूज की थी हमने, तो प्रोपल्शन के लिए जो रॉकेट यूज किया है, इज इट अ रीयूजेबल वन और they are not reusable. these are not the They are not reusable. What about the shuttle that we are planning for the manned mission? Even that will not be reusable, but it would be capable to re-enter the earth Yes, sir. because Not it, like how Discovery was. not that it should not, it shouldn't happen. We should pray that it should not happen to that. क्योंकि जब मैंड मिशन जाएगा तो वो उन लोगों को तो वहाँ से वापस लाना है। Sir, Yes. but Discovery was a reusable shuttle. डिस्कवरी वाज ए रीयूजेबल शटल, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली डिमोलिश हो गई, वो तो जल गई। So are we also planning to make something like that? सर इसकी जगह वहाँ लैंड करनी निश्चित है कि अमेरिका से कोई जगह खाली रहेगा? नहीं नहीं, देखिए ये साउथ पोल के ऊपर चांद के उतर रहा है, और जैसा मैंने बताया कि अब तक 4 देश ही, हम चौथे नंबर पर हैं। ऐसी सी वहाँ पर अभी डेंस पॉपुलेशन नहीं है जिसके लिए कि किसी भी कंट्री का सॉवरेंटी चांद पर है।
देखिए 7 सितंबर की अनुमानित तिथि है और समय तो शायद रात के 2 बजे के करीब का टाइम बताया है। ये मेरा ख्याल है 7 तारीख, 6 तारीख समाप्त हो जाएगी और 7 तारीख चालू हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर उस समय वहाँ, देखिए वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट्स हैं। इट शुड बी ए सॉफ्ट लैंडिंग। अपने घर में ठीक ठाक बैठे रहते, आपने 7 तारीख तक की नींद उड़ा दी। आपकी नींद अगर हमारे चंद्रयान की मून लैंडिंग पर आपकी नींद नहीं उतर रही है या नहीं उड़ी, तो फिर तो ना, उस दिन तो आपको नींद आनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसका शायद, मेरे को उसका पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसका ज़रूर लाइव टेलीकास्ट होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो खुद वहाँ पर उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। आप लाइव देखेंगे या नहीं, चाहे आप श्रीहरिकोटा में हो, चाहे त्रिवेंद्रम में हो, आप कहीं भी हो, लॉन्चिंग भी जो आप देखते हैं वो साइट से लगभग 12 किलोमीटर दूर जगह होती है, जिसको कहते हैं मिशन कंट्रोल सेंटर, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो कोई आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। जो आदमी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा, उसके कान फट जाएंगे, वो आदमी मर जाएगा। इवन द चेयरमैन ऑफ द इसरो, और फॉर दैट मैटर एनीबडी, इट कैनॉट बी इन लेस देन a distance of 12 किलोमीटर्स। नहीं, मैं तो अंबाला में होगा, क्योंकि इस तरह के सारे प्रोग्राम्स में इट इज़ ए हाईली क्लासीफाइड एंड ए हाईली सेंसिटिव ऑडियंस, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो 13 सेंटर्स हैं, त्रिवेंद्रम, महेंद्रगिरी, वलियामाला, श्रीहरिकोटा, इसी में कम से कम 5000 साइंटिस्ट होगा। अब जैसे ऐसा सा ऑडिटोरियम है उनका मिशन कंट्रोल सेंटर, उसी में तकरीबन 150-200 साइंटिस्ट होंगे जो टॉप मोस्ट होंगे। कोई और प्रश्न? धन्यवाद। अब मैं सुभाष बंसल जी को बुलाता हूं फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। दोस्तों, 2 शब्द, पार एक्सेलेंस, और एक अनुरोध ये कि आप ये सारा हाउस खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन डॉक्टर अनिल जैन को। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए बुलाया गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ किस चीज़ के लिए इनका धन्यवाद ना करूँ और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए धन्यवाद करूँ, क्योंकि इन्होंने आज इतने काम किए हैं। मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ, सबसे पहला काम, इन्होंने हमें एक इंडियन होने पर गर्व की अनुभूति कराई है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारे देश की उपलब्धियां हैं। मुझे याद आ रहा था सन 69 का वो दिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की धरती पर उतरा था और हम रेडियो के साथ कान लगा करके कमेंट्री सुन रहे थे, और जैसे ही रेडियो में आया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतर गए तो यकीन जानिए उस दिन हमें अपना मानव होने पर गर्व की अनुभूति हुई थी। ये महसूस हुआ था कि इंसान वाकई, जैसा कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके पश्चात आपने आज एक माँ का काम किया। वो कैसे कि माँ जब अपने बच्चे को, चिड़िया को चोगा देती है तो सब कुछ जो वो लाती है भोजन को, उसको अपने चोंच में पिपोल करके इतना नरम बना के देती है कि वो बच्चे की जुबान को इंजर ना करे, बच्चे की गले की नाल को इंजर ना करे, और आसानी से उसके पेट में उतर करके वहाँ से उसे पोषण प्रदान करे। आप देखिए, आप
टीवी में भी देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, नेट पर भी देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। आपको जरा सोच करके देखिए कि जो आज उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको पता लगा, क्या कभी आपको टीवी पर देखते हुए, नेट पर देखते हुए कभी अनुभूति हुई? शायद नहीं। मैं उनकी बात नहीं कह सकता जो आज बच्चे IIT में या उसमें पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम जो यहाँ एक आज का जो हमारी लोग यहाँ बैठे हैं, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि हम सब ने उसे पूरी तरह से एंजॉय किया। और आखिरी बात, बातें तो बहुत है कहने की, लेकिन समय बहुत हो गया। आखिरी बात, मुझे याद आ रहा है आज़ादी से कुछ साल पहले जब पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो उस वक्त उसमें चर्चा था कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की ज़रूरत है अगर हम वाकई प्रगति करना चाहते हैं। वो साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप हो, उसके लिए काम शुरू हुआ। और उसके लिए काम, मुझे तो याद है जयंत विष्णु नार्लिकर साहब थे, जिन्होंने की बहुत आसान भाषा में, देखिए चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना करके कह देना बहुत आसान होता है। कहीं से आपने पढ़ा, वर्ड्स का जार्गन इकट्ठा किया और आकर के बोल दिया, और लोगों की समझ में आया या नहीं आया, आपकी डिग्रीज को देख करके और आपकी उपलब्धि को देख करके, आप डायरेक्टर हैं, आप PhD हैं, डीलिट हैं, और वो ना समझ में आते हुए भी हर आदमी तारीफ करता है, तो बहुत अच्छा, क्या बात कही है, समझ में नहीं आता। लेकिन आज जितनी सिंपल भाषा में और जिस तरीके से हमारे दिमाग में उतरती चली गई बात, और जैसे डॉक्टर सुशील कंसल ने कहा कि आपने तो हमारी नींद उड़ा दी। क्यों नींद उड़ा दी? कि हर एक को इच्छा हो गई ये जानने की कि भाई 7 सितंबर को हमारा चंद्रयान बिल्कुल उस पर चंद्रमा की सतह पर उतरना है। तो हम सबके दिल में ये उत्कंठा पैदा हुई कि हम देखेंगे। उस वक्त हम उस आवाज को, उस ध्वनि को स्पष्ट अपने कान में महसूस करेंगे कि हाँ, ये सॉफ्ट लैंड कर गया। तो ये धन्यवाद की बातें हैं। डॉक्टर साहब, हमें फख्र है आप पर, हमें फख्र है कि आप हमारे मित्र हैं, हमें फख्र है कि आप रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के सदस्य हैं, हमें फख्र है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया अंबाला का अगर पिन पॉइंट किया जाए, अंबाला कैंट और फिर उसके बाद सूबा और फिर उसके बाद देश, वो छोड़ दीजिए, आप अंबाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में बैठ करके श्रीहरिकोटा में जाकर के इतना उच्च काम कर पाते हैं और करके आए हैं। और आप कालीबाड़ी के निकट रहते हैं, जहां हमें ये प्रिविलेज हासिल है कि हम कभी भी जाकर के आपका दरवाजा आपसे पूछे बगैर खड़का करके कहें चाय पिलाओ, हम आए। किस किस बात के लिए आपका धन्यवाद करें? धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से। मैं आज डॉक्टर RS राणा, प्रिंसिपल सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, राणा साहब का बहुत 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 धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें रोटरी क्लब ऑफ अंबाला की यह स्पेशल मीटिंग यहाँ पर आयोजित करने का इजाज़त दी, हमें अवसर दिया, हमें सारी सुविधा दी। और ये सारी की सारी चीज़ आज, ये सारी सुविधा आज उस दिन दी जब जन्माष्टमी का पर्व है, और सारा का सारा स्टाफ सनातन धर्म कॉलेज का आज छुट्टी पर है। डॉक्टर साहब के कॉलेज के डॉक्टर RS राणा प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर सुशील कंसल हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, 2 लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने कि इस प्रोग्राम में बड़ी भारी मदद की। मैं पूरे सदन से ये दरखास्त करूँगा कि आप इनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और मेरे वैशेषिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंजीनियर्स जो यहाँ पर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी सीट पर खड़े हों। मिस्टर अशोक कुमार, मिस्टर सूरज प्रकाश,
जिन्होंने कि इस पूरे के पूरे लॉजिस्टिक्स को और अरेंजमेंट्स को और इंस्ट्रूमेंटेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिश कराने में मदद की और आप सब आए, आपका बहुत बहुत टाइम फॉर फेलिसिटेशन फॉर रोटरी क्लब डॉक्टर अनिल जैन। 17 अगस्त को उनका जन्मदिन था। रोटरी क्लब ऑफ वाला की तरफ से आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। मिसेस मंजू सागर, 19 अगस्त को उनका जन्मदिन था। रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। 22 अगस्त डॉक्टर नीरज प्राशर, उनका जन्मदिन था, उनको बहुत बहुत मुबारक। आर के मेहंदीरता जी और सीमा मेहंदीरता जी का मैरिज एनिवर्सरी 23 यानी कि आज ही के दिन, उनको रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मीटिंग्स एंड